મારું નામ ડૉક્ટર ગૌતમ માકડિયા છે. હું શાશ્વત હોસ્પિટલ્સ રાજકોટ સાથે જોડાયેલો છું અને હું એક મેડિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ છું, કે તમામ પ્રકારના લોહી અને કેન્સરના રોગોનો નિષ્ણાત. ફર્સ્ટ એવર આપણે જે બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કર્યું એ શાશ્વત ટીમમાં ડૉક્ટર સુજય રાયચોવાર સાહેબની આગેવાનીમાં, એ ટીમનો ઘણો બધો સારો સપોર્ટ હતો આ પેશન્ટની આ પ્રોસિજર કરવા માટે. કારણ કે આપણા સૌરાષ્ટ્ર માટે એક ગૌરવસભર ક્ષણ કહેવાય આપણા માટે, કે આપણે જે અત્યાર સુધી જે કરવા માટે આપણે બહાર જવું પડતું હતું અથવા તો પેશન્ટોને બહાર જવું પડતું હતું, એ આપણી સૌરાષ્ટ્રની ટીમે કરી બતાવ્યું. અને ખાસ હું પેશન્ટના જે રિલેટિવ્સનો પણ આભાર માનીશ, પેશન્ટનો આભાર માનીશ. એ લોકોએ પૂરા વિશ્વાસ સાથે અમારી ટીમને સપોર્ટ કર્યો છે. કારણ કે એ બહુ અગત્યનું છે પેશન્ટને સારું રિઝલ્ટ આપવું. કે આ પેશન્ટને તમે ડૉક્ટર સુજય સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે બહુ ઓછી કોમ્પ્લિકેશન થઈ છે. ઘણા પેશન્ટમાં કુદરતી કારણોસર ઘણી બધી કોમ્પ્લિકેશન થતી હોય, પણ ઈશ્વરની પૂરી દયાથી આ પેશન્ટમાં બહુ ઓછી કોમ્પ્લિકેશન સાથે પેશન્ટ અત્યારે તમારી મારી જેમ સારી લાઈફ જીવી રહ્યું છે. ભલે એમને થોડીક કાળજી રાખવી પડશે, પણ એમને તો એક નવજીવન મળ્યું છે. તો આ શક્ય બન્યું છે એક મેડિકલ ટેકનોલોજી સાયન્સને લીધે, એક હોસ્પિટલ અને હોસ્પિટલના જે સ્ટાફના જે એક એગ્રેસિવ જે પેલું કે ને કે ટ્રીટમેન્ટ એપ્રોચને લીધે, કે આપણે જે કરશું તો સમજી વિચારીને પેશન્ટના હિત માટે થોડુંક જોખમ ઉઠાવવું પડશે તો જોખમ પણ ઉઠાવશું, પણ પેશન્ટને સારું કરીને જ રહીશું, એવું એગ્રેસિવ જે એટીટ્યુડ કહેવાય. અને પેશન્ટ અને પેશન્ટના રિલેટિવ્સના જે સગાવાલાઓ છે એમની અમારા તરફની લાગણી અને શ્રદ્ધા, તો આ શક્ય બન્યું છે. અને આપણે હજી આગળ ઉપર તપાવશું, ઘણા બધા પેશન્ટોને આનો બેનિફિટ થાય અને પેશન્ટોને એક રોગમુક્ત અથવા તો રોગ પેલું જે કહીએ ને કે રોગ પેશન્ટોને ઓછો હેરાન કરી શકે, ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ સાથેની જિંદગી મળે, એના માટે અમે અમારી ટીમ પૂરી તત્પર છીએ. તમારા જેવા જે મીડિયા કર્મીઓનો અને ફ્રેન્ડ્સનો અને વડીલોનો એક મારું ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે આ કેન્સર બાબતે ઇન જનરલ, ખાલી બ્લડ કેન્સરની, ઇન જનરલ કેન્સર બાબતે પણ એક આપણી સોસાયટીને અવેર કરવાની જરૂર છે કે કેન્સર સામે ડરવાનું નથી, લડવાનું છે, સમજણપૂર્વક લડવાનું છે. તો આપણે મહદ અંશે કેન્સરને હરાવી શકીશું, એને નાથી શકીશું. मेरा नाम डॉक्टर सुजय राइंजवार है. मैं हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन शाश्वत हॉस्पिटल राजकोट में हूँ. तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या खास है? यस, सो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ऑर्गेनाइज किया कि हमने फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी चालू किया है एंड हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट भी हमने ऑफिशियली लॉन्च किया है. सो इसीलिए हमने ऑर्गेनाइज किया है. आज तक सौराष्ट्र कच्छ रीजन में हमारे पास कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी सारी सुविधाएं थी, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एडवांस प्रोसीजर सेलुलर थेरेपी जो है ये अभी तक अवेलेबल नहीं था. तो इसके लिए पेशेंट को काफ़ी बार बाहर जाना पड़ता था एंड वो पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. सो इसीलिए हम लोग ने इस चीज़ को यहाँ पे स्टार्ट किया था कि पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़े. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी हमने जो किया है, सो ये जो प्रोसीजर एक मेडिकल प्रोसीजर है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है जैसे काफ़ी लोगों को लगता है. सो पहले के टाइम पे हमें सर्जरी करके हमें स्टेम सेल निकालने पड़ते थे, बट आज के टाइम में हम लोग इसको मेडिकली ही कर सकते हैं. जैसे आपने प्लेटलेट ब्लड डोनेशन सुना होगा, सो उसी टाइप से हम लोग मेडिसिन देके स्टेम सेल जो होते हैं हमारे, जो बोन मैरो के अंदर होते हैं, हड्डी के अंदर होते हैं, उसको हम लोग ब्लड में लाते हैं और ब्लड में आने के बाद में एक एफेरेसिस मशीन होता है. सो मशीन से हम लोग स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे आप प्लेटलेट डोनेट करते हो, ब्लड डोनेट करते हो, बस उसमें सॉफ्टवेयर और जो किट होता है वो अलग होता है. सो स्टेम सेल एक बार निकालने के बाद में उसे फ्रीज में रखा जाता है, फ्रीज किया जाता है जो प्यूरिफाइड स्टेम सेल्स है. उसके बाद में पेशेंट को जो भी ब्लड कैंसर है, तो कैंसर के टाइप से, तो कैंसर के हिसाब से एक कंडीशनिंग थेरेपी दिया जाता है, जिससे पेशेंट के बॉडी में जो भी बचा हुआ डिसीज़ है उसको क्लीन किया जाता है. एंड उसके नेक्स्ट डे पेशेंट के जो स्टेम सेल्स हमने प्यूरिफाई करके निकाले थे उसको पेशेंट को वापस री इन्फ्यूज़ किया जाता है. ये होने के बाद में पेशेंट को 10 to 15 डेज लगते हैं जब उसका नया ब्लड बने. वो टाइम में पेशेंट का इम्यूनिटी ऑलमोस्ट जीरो होता है, पेशेंट कम्प्लीटली मेडिकली डिपेंडेंट होता है. इस टाइम पे पेशेंट को एक सेपरेट रूम में रखा जाता है जिसे हेपा फिल्टर रूम बोलते हैं. सो ये रूम का मेन एडवांटेज ये होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शंस ना हो. तो इसमें जो AQI या फिर जो इसमें जो एयर क्वालिटी होता है ये वन ऑफ द बेस्ट होता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट्स को कोई भी एक्सटर्नल फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होते. सो इसमें फिर 10 to 15 डेज के बाद में जब पेशेंट का जो स्टेम सेल्स है ये जैसे धीरे धीरे ब्लड बनाना स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करने के बाद में उसका ब्लड बनना स्टार्ट होता है, WBC प्लेटलेट बनना स्टार्ट होता है, उसका इम्यूनिटी बैक टू नॉर्मल होने लग जाता है. उस टाइम पे हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं. तो ये प्रोसीजर का मेन गोल ये होता है कि पेशेंट का जो डिजीज़ है, जो कीमो से क्लियर नहीं हो रहा था, उसको हम लोग क्लियर करें एंड पेशेंट को लॉन्ग लाइफ दे.
दैट इज द मेन गोल। सर ये कौन से स्टेज में होता है, कैसे प्रोवाइड होगा ट्रीटमेंट? यस, सो ब्लड कैंसर में बाकी कैंसर के टाइप से हम लोग स्टेजिंग नहीं करते कभी भी, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में ही होता है, तो जो भी उसमें ट्रीटमेंट होता है पूरे बॉडी को क्लियर करने के लिए होता है। सो ये लाइक ओवरऑल 40 to 50% केसेस में ब्लड कैंसर में कोई ना कोई स्टेज पे ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है पेशेंट को। सो इट इज तो ये स्टेज के हिसाब से नहीं, बट जो डीएनए जो होता है कैंसर डीएनए, तो उसके लाइक रिस्क के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो सब कैंसर का रिस्क का जो स्टेजिंग अलग अलग रहता है। तो यूजुअली मीडियम टू हाई रिस्क केसेस में ही किया जाता है।